Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we are going to start structure of nephron. ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी कहाँ प्लेस्ड है, and human excretory system we had seen. Now today we will see that how the nephrons looks like. So in each kidney, right, suppose this is the right side kidney and this is the left side kidney. So in each kidney we have 1 million of nephron, 1 million in right side kidney and 1 million in left side of our kidney. ठीक है, तो यहाँ पे किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है एक्चुअली वही है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगी. ओके, ब्लड में जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है इन द यूरिन. तो वो कौन काम कर रहा है? वो कर रहे हैं नेफ्रॉन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ओके, सो द नेफ्रॉन कंटेन्स टू पार्ट्स. दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द रीनल ट्यूब्यूल एंड द अदर वन इज कॉल्ड द मालफिजियन बॉडी. Malphizian body is also called renal corpuscle. Okay, so renal tubules के जो part हैं, they are the proximal convoluted tubule, then distal convoluted tubule and the loop of Henle. ठीक है, ये रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स हैं. वेयर एज द मालफिजियन बॉडी कंटेन्स द ग्लोमेरुलस and the Bowman's capsule. Isn't it? So these are the parts of the nephron, renal tubule and the Malphizian body. Renal tubule contains three parts: proximal convoluted tubule. In short, we will write it PCT. Distal convoluted tubule is DCT, and the loop of Henle. Now let us draw the diagram of nephron. So the cup-shaped structure of the nephron is called the Bowman's capsule. ठीक है, ये Bowman's capsule है. Now from the end of the Bowman's capsule, a highly convoluted structure is there. Actually, it is a tube. Highly convoluted tubule is there. This is called proximal convoluted tubule. And then there is a loop of Henle. So this limb is going downward. So it is called descending limb. And this is moving upward. So it is called ascending limb. Okay, ascending limb is quite thin as compared to the descending limb. Then we have distal convoluted tubule. This distal convoluted tubule is connected to the collecting duct. So in the collecting duct, many tubules are connected. So it is not the part of the nephron. Okay, now let us recall what we have seen. So this is a cup-shaped structure. Cup जैसा एक structure होता है. Okay, इसके अंदर है glomerulus. Glomerulus is nothing but the tuft of capillaries. Okay, let us draw the glomerulus here. This is the arteriole जो blood लेके आ रही है, and here it is divided into capillaries. So here we have capillaries. This portion is called glomerulus. So what is glomerulus? Glomerulus is nothing but the tuft of capillaries. Capillaries का गुच्छा है. Okay, capillaries का गुच्छा है. ये जो ब्लड इसके अंदर लेके आती है उसको बोलते हैं efferent. This is called efferent arteriole. And this one is called efferent arteriole.
जो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर ला रही है वो है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो लेके जा रही है, एग्जिट कर रही है, ई से एफरेंट, ई से एग्जिट, ओके, तो जो लेके जा रही है दैट इज द एफरेंट आर्टेरियोल। नाउ दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज लूप ऑफ हैनले, ठीक है, पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। यू शेप पिन देखिए, जो मोस्टली गर्ल्स जोड़े में लगाती हैं, वो वाली पिन, वैसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज दी डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ, इसमें फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा, और हियर द फ्लूइड मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, ये थिन होती है एज कंपेयर टू असेंडिंग लिम्ब। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन एज कंपेयर टू असेंडिंग लिम्ब। दिस इज ascending limb of Henle. This one is permeable to water. This is very important. यहां से पानी बाहर अंदर जा सकता है. This one is permeable to ions. Okay, descending limb is permeable to water, whereas the ascending limb जो ऊपर लेके जा रही है फ्लूइड को, that is permeable to ions and impermeable to water. यहाँ पे पानी नहीं जा सकता अंदर, यहां से आयंस नहीं जा सकते अंदर, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, केवल ही पानी ही बाहर आ सकता है, यहाँ से आयंस बाहर आ सकते हैं. ओके, नाउ हियर दिस अनदर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज देयर, दिस इज कॉल्ड DCT. नाउ दिस DCT इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग duct. So here many nephrons are disconnected to the collecting duct, so it is not the part of the nephron. ये part नहीं है nephron का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे nephrons यहाँ से जुड़े हुए होते हैं. Okay, so that's why collecting duct is not the part of the nephron. Now let's recall again. So what we had seen, that nephron contains two parts, the renal tubule and the Malpighian body. So this whole structure, this one is the Malpighian body. ओके, सो माल्फिजियन बॉडी में क्या क्या है, ग्लोमेरुलस है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि, और बोमेन्स कैप्सूल. ओके, नाउ बोमेन्स कैप्सूल का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अब इसका सेल्स जो होते हैं इसके अंदर विसरल साइड में, यानी कि ये जो विसरल साइड है अंदर की तरफ जो है, और पैराइटल मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पे तो आपको फ्लैट स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे. ठीक है, बहुत पतले पतले स्क्वेमस सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स. ओके, ये एपिथेलियम सेल्स है स्क्वेमस. बट आप विजुअल साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. These cells are called podocytes. This one is called parietal. Parietal squamous epithelium. ओके, स्क्वेमस एपिथेलियम. पैराइटल मतलब पेरिफेरी की तरफ है, पैराइटल साइड में है, तो वो पैराइटल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया. और जो बीच में है, जो ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए हैं, एक्चुअली इन कैपिलरीज को ये होल्ड किए होते हैं ये सेल्स. दीज सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. ओके, ये वाले जो सेल्स हैं इनको पोडोसाइट्स बोलते हैं. राइट, पोडोसाइट सेल्स. तो ये कुछ नहीं है, ये भी एपिथेलियल सेल्स ही है, बट ये थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स के बीच में जगह होती है. ओके, स्पेस इज दैट, ये जो जगह है इसको बोलते हैं स्लिट पोर्स. ओके, पोडोसाइट्स के बीच में जगह होती है जिससे कि जो फिल्ट्रेट है वो नीचे बोमेन्स कैप्सूल में आ सके. तो इस स्लिट पोर्स के थ्रू जो भी वेस्ट है वो नीचे बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. सो माल्फिजियन बॉडी में दो पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस, एंड दिस कप जैसा जो स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को अंदर होल्ड किए हुए है, दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल. ओके, अब बात करते हैं ट्यूब्यूल की. ट्यूब्यूल जैसा जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा, दैट कंटेन्स थ्री पार्ट्स. तो फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल, जो पास में है, प्रॉक्सिमल.
ठीक है, जो बिल्कुल बोमेस कैप्सूल के पास में है तो उसे प्रॉक्सिमल बोलेंगे, जो दूर है उसे डिस्टल बोलेंगे। और कन्वोल्यूटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाईली कन्वोल्यूटेड इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब, इट इज कन्वोल्यूटेड, फोल्डिंग्स होती हैं इसमें, इसलिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देन देयर इज दिस वन इज द लूप ऑफ हैनले। तो पिन जैसा जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले नीचे की तरफ जो जा रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब हो गई उसकी, और ऊपर की तरफ जो जा रही है दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। राइट, clear, everything is clear till here. Now we will see with the help of the diagrams. So please see this lecture till the end so you can easily understand this topic. I assure you that surely you will understand it. Now as we have seen that nephrons जो होते हैं ये क्या है, functional unit है. These are the functional unit of kidney because these are the parts which are going to remove the waste from our blood. Okay, यही है जो हमारे waste को blood से निकालेंगे. Then it contains two part, renal tubule and Malpighian body. Okay, तो ये आप देख रहे हो कप जैसा जो स्ट्रक्चर, ये तो हो गया बोवेस कैप्सूल. ओके, और इसके अंदर जो है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है, दिस इज द ग्लोमेरुलस. Okay, this is the arteriole which is taking the blood in the glomerulus, and this is the efferent arteriole which is taking out the blood from the glomerulus. Right, so this whole structure is called the Malpighian body. Right, renal tubule we have seen. Now this is also very important, hepatic vein. ये जो वेन है ये निकलती है लिवर से. So liver में से जो वेन निकल रही है that vein is the hepatic vein. This vein is rich in urea. इसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है. So this is very important for you कि कौन सी ऐसी वेन है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया मिलता है. तो that is the hepatic vein. क्यों? Reason is that क्योंकि जो यूरिया है वो लिवर में ही बन रहा है. Okay, so अमोनिया से in the presence of carbon dioxide urea is formed, that we have seen in the first part कि यूरिया बनता है, and this cycle is called ornithine cycle. इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं जो लिवर में होती है. तो यूरिया कहाँ बन रहा है, लिवर में, एंड दिस इज वेरी टॉक्सिक, सो इट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. तो सबसे ज्यादा जो वेन कैरी कर रही है यूरिया वो होती है हेपेटिक वेन, और सबसे कम जो यूरिया होता है वो होता है रीनल वेन में. देखो रीनल वर्ड जहां भी आ जाए वो होता है किडनी से रिलेटेड. ठीक है, तो जो किडनी के से जो ब्लड वेन बाहर लेके आएगी दैट इज द रीनल वेन. This renal vein contains very less यूरिया. सबसे कम यूरिया इसी वेन में मिलेगा. कौन सी वेन में, रीनल वेन में. सबसे ज्यादा हेपेटिक वेन में. क्लियर है? Now here you can see the podocytes. So these are the tuft of capillaries. अंदर ये जो है ये पूरा ग्लोमेरुलस है अंदर. This is the बोमेस कैप्सूल. ये बोमेस कैप्सूल दिख रहा है आपको, और बोमेस कैप्सूल की पैराइटल लेयर पे आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये सारे जो सेल्स हैं ये स्क्यूमस एपिथेलियम के हैं, और जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं ये जो होल्ड कर रहे हैं कैपिलरीज को, दीज सेल्स आर द पोडोसाइट्स. ओके, इनको पोडोसाइट्स बोलते हैं. आप देख सकते हो ये कैसे ये पकड़े हुए हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को. ओके, दे आर होल्डिंग. राइट, सो इन दिस वे दे होल्ड द कैपिलरीज. And in between this podocyte there is a small space is there that is called slit pore. Okay, clear? So this is the afferent arteriole which is taking the blood in. यहाँ से blood अंदर आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा. Okay, again and again I am repeating so that you can easily understand or you can easily remember. Now you can see in this picture that this is the glomerulus, tuft of capillary. This is the glomerulus. This is the Boehm's capsule. This is the proximal convoluted tubule. Then this is the loop of Henle. This is DCT. No, sorry, यहाँ तक है loop of Henle. ठीक है, यहाँ से ये है DCT. This is the collecting duct. This is collecting duct.
Now, here important thing to note is that Bowman's capsule, ध्यान से सुनिएगा, Bowman's capsule, then PCT proximal convoluted tubule, DCT distal convoluted tubule, they all are present in the cortex region. ओके मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो किडनी होती है, किडनी के दो रीजन होते हैं. सो आउटर वाला जो होता है दैट इज द कॉर्टेक्स. ये पूरा जो रीजन है ये कॉर्टेक्स रीजन है, और अंदर वाला जो रीजन है दिस इज द मेडुला रीजन. मेडुला रीजन में ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है पिरामिड जैसे, उनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स. ठीक है, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स. Isn't it? ये सब क्लियर है आपको कि कॉर्टेक्स रीजन बाहर वाला हो गया यहाँ पे. तो यू कैन सी इन द कॉर्टेक्स रीजन, सब कॉर्टेक्स रीजन में ही सब कुछ प्रेजेंट है. केवल लूप ऑफ हैले जो है दैट इज प्रेजेंट इन द दिस मेडुलरी पिरामिड्स. ओके, सो दिस इज द मेडुला रीजन, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन. सो मेडुला रीजन में आप देख सकते हो लूप ऑफ हैले है, केवल लूप ऑफ हैले है जो मेडुला रीजन में है. और जो कलेक्टिंग डक्ट है अभी मैंने बताया दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. दिस कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन बोथ, कॉर्टेक्स में भी होती है और ये मेडुला तक जाती है. ओके, यहीं पर यूरिन होगा, ये जो यूरिन है आगे लेके जाएगी. क्लियर? सो व्हाट इज माय मेन मोटो टू शो दिस डायग्राम इज दैट कि बोमेस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी कहाँ प्लेस्ड है? कॉर्टेक्स एरिया में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्टेक्स एरिया में क्या क्या है? बोमेस कैप्सूल है यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे. केवल लूप ऑफ हैले जो है वो है मेडुला तक जाता है. ओके, अब इस फिगर में आप देखिए कि जो ये जो आर्टरी आ रही है, अभी हम बार बार एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल की जो बात कर रहे थे वो यहीं से आप देख सकते हैं कि किडनी के अंदर जो आर्टरी एंटर करती है that artery is called renal artery. ये renal artery अंदर जब एंटर करती है तो ये डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में. ठीक है, अंदर जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी ब्रांचेस में. ब्रांचेस के बाद इसकी फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगी, क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन तक पहुंचना है. ओके, हर एक नेफ्रॉन के पास इस आर्टरी को पहुंचना है. तो इसकी इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं कि ये सारे नेफ्रॉन्स के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कि जो ग्लोमेरुलस हमने देखा वो बना सके. क्लियर है? तो रीनल आर्टरी की इतनी सारी ब्रांचेस हो जाती हैं. आर्टरी के बाद क्या बनते हैं? आर्टेरियोल्स. आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स. ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल. आर्टेरियोल बोल रहे हैं क्योंकि वो आर्टरी की ब्रांचेस है. राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्टरी जो एंटर कर रही है, ये जो है कॉर्टेक्स रीजन है, ये है मेडुला रीजन. ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये आर्टरी जब एंटर करेगी यहाँ पे, इसकी फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगी. यू कैन सी ब्रांचेस होती जा रही है इसकी. यहाँ पे ये नेफ्रॉन जो है, इसका बोमेस कैप्सूल जो यहाँ पे प्लेस्ड है, इसके अंदर ये जा रही है. तो ये जब एंटर करती है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. और जब ये अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेती है, फिर ये बाहर निकल के आती है, तो इसे बाहर जब निकलती है तो उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, इसमें जो भी वेस्ट था वो सारा बोमेस कैप्सूल में चला जाता है. फिर इसका जो फर्दर यूरिन कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. सो इसकी जो ब्रांचेस ये बाहर आ गई. अब आप देख सकते हो ये पूरी ट्यूब्यूल के ऊपर लपेटे हुए अपने आप को. ओके, जो इफरेंट आर्टेरियोल बाहर आई है ये बाहर लपेटे हुए है ट्यूब्यूल के ऊपर. ये जो पीसीटी डीसीटी सबके ऊपर लपेटे हुए हैं ना अपने आप को, ये आप देख सकते हो इसका नेटवर्क. तो ये जो लपेटी हुई है अपने आप को दूसरी पीसीटी वगैरह के ऊपर, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, क्योंकि ट्यूब्यूल्स के ऊपर इसने लपेट रखा है अपने आप को. तो इन्हीं को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. क्लियर? तो ये जो भी है यहाँ पे अपना नेटवर्क सब बनाए हुए हैं, गुच्छा बनाए हुए हैं, ये क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं.
अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आप देख सकते हो, यहाँ पे ये यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, लूप ऑफ हैनले के साथ साथ बनना रही है ये। इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रीनल आर्टरी यहाँ पे आ रही है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका काम क्या है? एक तो ऑक्सीजन देना है, और इसमें जो यूरिया है, जो वेस्ट है, वो रिमूव होना है। ओके, रीनल आर्टरी में से दो चीजें, आर्टरी का काम ही होता है ऑक्सीजन देना, आर्टरी में ऑक्सीजन होती है ना, तो उसको ऑक्सीजन देना है, और जो इसमें यूरिया है, जो वेस्ट है, वो रिमूव करना होता है इसको। तो ये जब अंदर जाएगी, ठीक है, अंदर जाएगी। सो लेट अस शो यू डिफरेंट डायग्राम। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल ये देख रहे हैं, अंदर जाएगी जब यहाँ से, तो इसमें क्या क्या है? यूरिया है, और भी वेस्ट है, ऑक्सीजन भी है। तो ये यहाँ पे गई, यहाँ पे इसने अपना वेस्ट तो रिमूव कर दिया, यानी कि यूरिया तो रिमूव हो गया, यहाँ से यूरिया बोमेस कैप्सूल में आ गया। अभी इसने ऑक्सीजन नहीं दिया, ओके, अभी इसने अपना ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ये आ गई बाहर निकल गई, ये ऐसे ही बाहर निकल के आ गई, यानी कि आर्टरी ने फिर से आर्टरी ही बना दी। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं, they divide into capillaries. Okay, they divided into thin capillaries. Then capillaries will form veins. तो what we have seen here कि अभी वेन नहीं बनी, आर्टरी से आर्टरी ही बनी है। ओके, सो what we have seen कि आर्टरियोल जो थी, आर्टरियोल ही बन रहा है अभी। Why? The reason is that कि अभी इसका ऑक्सीजन जो उसको देना था किडनी के सेल्स को, that task is left, वो काम अभी रह गया है। क्योंकि जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी, तभी वेन्स बनती हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव नहीं हुई है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इफरेंट आर्टरियोल, नॉट अ वेन। अभी से वेन नहीं बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? ओके, तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी वेन ऐसे नहीं बोला, ये वासा रेक्टा है, यहाँ से इसका सारा ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, ये सारी अभी इसका जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक नहीं पहुंचा। जैसे ही ऑक्सीजन इसका सेल्स तक पहुंच जाएगा, इट विल फॉर्म अ वेन। ये वेन बन गई है, ओके, ये वेन जा रही है यहाँ से, ये वेन है, ये वेन, दिस इज द वेन, दिस इज द वेन, दिस विल फॉर्म देन द रीनल वेन। ठीक है, किडनी से बाहर आ जाएगी, वो है रीनल वेन। तो अभी हमने बताया कि रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होता है, वेरी लेस यूरिया। सबसे कम यूरिया इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लड की हो गई है सफाई, सारा यूरिया चला गया है हमारे यूरिन में। Isn't it clear everything? So this is the topic for today, and one more thing is left, that is the nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary। ये तो बहुत ही इजी है कि दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक कॉर्टिकल, यानी कि वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर पार्ट कहाँ पे है? कॉर्टेक्स एरिया में। तो आप ये वाला जो नेफ्रॉन देख रहे हो, ये जो नेफ्रॉन है, इसका मोस्टली पार्ट इस लाइंग इन द कॉर्टेक्स एरिया। ओके, इसका जो लूप ऑफ हैनले है वो इतना छोटा है कि मेडुला तक नहीं जाता। ओके, बहुत ही छोटा सा लूप ये मेडुला तक बनाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन विच इज हैविंग वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हैनले, short loop of Henle. Such nephrons are called cortical nephrons. And if we talk about juxtamedullary, juxtamedullary हो गया वो नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हैनले बहुत लंबा है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये लूप ऑफ हैनले बहुत ही लंबा है। लेट मी इरेज एवरीथिंग। So this is the loop of Henle which is placed in the medulla region. Okay, this is the loop of Henle which is placed in the medulla region. So जिसका loop of Henle बहुत लंबा होता है, deep inside medulla तक जाता है, उसको बोलते हैं juxtamedullary nephron. Juxta is used for the thing which is very close. तो आप देख सकते हो loop of Henle जो medulla के बहुत ही close है, तो उसे बोलेंगे, मेडुला के जो बिल्कुल क्लोज है उसे बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके,